Hello everyone. Today we are going to discuss syllogism, or you can say statement and conclusion. So, syllogism is a word of Greek word whose meaning is inference or deduction. Or we can say the new name of this that is statement and conclusion. It means in which statements are given, these are the statements and these are the conclusions. That's why this topic's name is also statement and conclusion. In this we have given the informations or the statements. These are the informations. And in this the informations are of two types. The first one is direct information, or you can say that active information. It means the information which is given directly. It means here this is given directly, all dogs are cats. That is the direct information, or you can say active information. And this is indirect information, passive information. It means in which the direction is not given directly. The information is not given directly. For example, here it is given that all dogs are cats and all cats are tigers. In this information or in this statement, the relation between dogs and tigers is not given. But in the conclusion it is asked that all dogs are tigers. So on which information it is given? This conclusion is given. It means this is given on the indirect information. It means there is a relationship between dogs and tigers because the medium is cat. According to this is the indirect information, or you can say passive information. So in this statement and conclusion, the question format will be like this. In this, the options are given accordingly. If the two statements or two conclusions are given, that time the options will be like this. Only first conclusion follows. Second, if only conclusion second follows. The third option is if both first and second follow. The fourth one is neither first nor second follows, and the fifth one is either first or second follows. These are the options in which we will choose at the basis of the statements and conclusions. The first one, here it is given that the statement. The first statement is all dogs are cats. So to solve these questions, these type of questions, we can solve these questions by two methods. The first one is by drawing all possible Venn diagram. And the second one is by drawing only one diagram. By drawing all possible Venn diagrams. This is the first process. But it is very difficult to draw all the possible Venn diagrams. How it is difficult? Let's see. This is the first statement. All dogs are cats. If we make a Venn diagram for this statement, it means these are the statements which are true for us. We have to
take these statements as true, and after these we will go on the conclusion. So this is the first statement, all dogs are cats. So by the Venn diagram we can represent this first statement that these are the two circles. The first circle for the dogs. So these are the dogs. All dogs are cats. It means सारे जो कुत्ते हैं वो कैट कब हो सकते हैं, जब वो किसके अंदर हो, कैट के सर्कल के अंदर हो. इट मीन्स दिस इज द सर्कल फॉर cat. From here we can say that these are the all dogs which are cat. We are drawing the possible Venn diagram, all the possible Venn diagram. तो क्या हम इस स्टेटमेंट के लिए कोई और डायग्राम बना सकते हैं जिसकी वजह से हम ये चीज शो कर सकें कि भी सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, कैट होने चाहिए. तो एक डायग्राम हमारे पास ये हो गया. अब क्या हम दूसरा डायग्राम इसके लिए बना सकते हैं? अगर आप सोचते हैं कि इसके लिए कोई दूसरा डायग्राम है या नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ये कहें कि भाई हाँ इसके लिए दूसरा डायग्राम हो सकता है, और शायद कुछ ये भी कह सकते हैं कि शायद इसके लिए दूसरा डायग्राम नहीं है. तो अब जो फर्स्ट जो है वो क्या करेगा, ये कर रहा है कि भाई ऑल डॉग्स आर कैट है. यहाँ से ये रिप्रेजेंट तो हो गया कि सारे के सारे जो डॉग हैं वो क्या है, कैट हैं. लेकिन क्या इसके लिए दूसरा डायग्राम हम बना सकते हैं? यस, वी कैन ड्रॉ वन मोर डायग्राम फॉर दिस इफ वी मेक ओनली वन डायग्राम, एंड दिस वन सर्कल इज फॉर डॉग एंड कैट एंड बोथ. From here we can say that all dogs are cat. तो हम यहाँ से भी वही चीज कह सकते हैं कि all dogs are cat. If we say that the cats are 85 and here the dogs are 75, so we can say that these are the 75 dogs which are as well as a cat also, and these are the 10 cats which are not dogs. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि all dogs are cat. यहाँ से भी हम वही चीज कह सकते हैं कि अगर कैट और डॉग की वैल्यू अगर इक्वल हो तो यहाँ से भी तो हम यही चीज कह सकते हैं कि ऑल डॉग आर कैट. तो जो पॉसिबल डायग्राम होते हैं, पॉसिबल डायग्राम बनाने क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि भी कौन कौन से पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं और जो कि सही भी हैं और करेक्ट भी हैं. अब यहाँ से ये चीज सबको पता थी कि ऑल डॉग्स आर कैट हम इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर किसी बड़े सर्कल के अंदर कोई छोटा सर्कल डाल रखा तो सीधी सी बात है कि उसकी ये जो सारी क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज बाहर वाला जो बड़ा जो सर्कल होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट है. लेकिन अगर ये सिंपल एक ही डायग्राम बना रहे हैं कि सर्कल जब हम बना रहे हैं, तो यहाँ से आई थिंक मैनी ऑफ यू कैन नॉट गो ऑन दिस कंक्लूजन है. तो ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है. लेकिन ये क्या है, ये केवल और केवल एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए पॉसिबल डायग्राम बनाया. तो अभी एक ही सिंगल स्टेटमेंट के लिए दो पॉसिबल डायग्राम हो चुके हैं. फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऑल कैट्स आर टाइगर्स, ऑल कैट्स आर टाइगर. तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, जो ये डायग्राम था इसी के अंदर अगर मैं इसको लेता हूँ कि ये क्या हो जाएंगे अब आपके टाइगर. तो एक पॉसिबल डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर टाइगर्स. यहाँ से भी यही चीज हो सकती है, ऑल डॉग्स आर कैट्स एंड ऑल कैट्स आर टाइगर. तो ये क्या हो गया, आपके टाइगर हो गए. दो पॉसिबल डायग्राम हो गए. तो जैसे ही स्टेटमेंट इंक्रीज हुई तो पॉसिबल डायग्राम भी क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे. अब और ज्यादा कैसे बढ़ जाएंगे, एक तो पॉसिबल डायग्राम ये हो गया, एक पॉसिबल डायग्राम ये हो गया. अगर हम एक और पॉसिबल डायग्राम लेते हैं तो वी कैन टेक वन मोर पॉसिबल डायग्राम है दैट दिस इज डॉग एंड आफ्टर दैट these are cat and tiger. This is also one more possible diagram. So this is also the possible diagram, this is also the possible diagram, this is also the possible diagram. क्या एक और possible diagram बना सकते हैं? जी बिल्कुल, एक और possible diagram हम बना सकते हैं. तो ये एक और possible diagram हो जाएगा, only one circle है, and this is all dogs are cats and all cats are tiger. अगर ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ बना रहा हूँ. Only one tiger, one circle, dogs, cats and tigers. So for these two statements, these are the four possible diagrams. This is the first possible diagram, this is the second possible diagram, this is the third possible diagram, and this is the fourth possible diagram.
अब ये पॉसिबल डायग्राम तो हो गया, दिस इज द फर्स्ट processes and the first way to solve these statement and conclusion questions. So these are the four possible diagrams. Now we will go on the conclusions. The first conclusion is all dogs are tiger. तो अब जब हमको ये चेक करना है कि जो ये फर्स्ट कंक्लूजन है, इट मीन्स ये हो गई सारी की सारी आपकी स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट होने के बाद सिर्फ हमें ये कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? कंक्लूजन का मीनिंग होता है कि रिजल्ट है, कि क्या इन स्टेटमेंट से ये रिजल्ट निकलता है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका रिजल्ट है या नहीं है। अगर रिजल्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कंक्लूजन अगर इसका रिजल्ट हो गया तो ये इसको फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ये सही है। और अगर ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है या फिर ये इसका रिजल्ट नहीं है, तो हमारे लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ये कंक्लूजन है ये इसको क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, डजंट फॉलो। तो अब हमें चेक करना है कि ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, क्या सारे डॉग टाइगर हैं। तो अब हमारे पास जितने भी पॉसिबल डायग्राम थे उन सब के अंदर हमें ये चेक करना है कि क्या ये चीज सही है। अगर ये सारे पॉसिबल डायग्राम्स के अंदर सही हो जाता है, प्रूव हो जाता है, करेक्ट प्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंक्लूजन है ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि ऑल डॉग्स आर टाइगर है। तो यहाँ पे जो टाइगर है वो टाइगर का सर्कल सबसे बाहर है और जो डॉग का सर्कल है वो कहाँ है, सबसे अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो डॉग है वो क्या है, टाइगर हो सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट कंक्लूजन है। तो यहाँ से जो ये फर्स्ट कंक्लूजन है इस फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम में क्या हो गया, सही प्रूव हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे भी सारे के सारे जो डॉग हैं वो टाइगर हैं। तो यहाँ पे जो ये अंदर वाला जो सर्कल है ये क्या हो गया, डॉग और कैट दोनों हो गए, और जो बाहर वाला सर्कल है वो क्या हो गया, टाइगर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे डॉग क्या हो गए, टाइगर हो गए। थर्ड जो कंक्लूजन हमने ये बनाया था इसके अंदर भी क्या हो गया कि डॉग का जो सर्कल है वो कहाँ पे है, अंदर है, और जो टाइगर का और कैट का जो सर्कल है वो एक ही सर्कल है, वो कहाँ है, इससे बाहर है। तो यहाँ से भी क्या हो गया कि सारे के सारे जो डॉग है वो क्या हो गए, टाइगर हो गए। अब ये बनाया था हमने एक पॉसिबल डायग्राम है, यहाँ से भी क्या हो गया कि ये एक ही सर्कल है और ये सारे के सारे क्या हो गए, इसी के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी डॉग है, मान लो 75 डॉग हो गए, 75 कैट हो गए, 75 टाइगर हो गए। तो यही जो कुछ है ये क्या है, कैट भी है, और यही जो कैट है ये क्या है, टाइगर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि एक ही क्वांटिटी के ये तीन नाम हो गए। तो क्लियरली वी कैन से दैट ऑल द डॉग्स आर क्या हो गए, ऑल द डॉग्स आर टाइगर। इसका मतलब है जो भी पॉसिबल डायग्राम थे हमारे पास, जो भी चार पॉसिबल डायग्राम थे, इन चारों पॉसिबल डायग्राम के अंदर जो आपका कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो गया, फॉलो कर रहा है। तो जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो गया, फॉलो कर गया। अब बात आती है कि सेकंड जो कंक्लूजन है, अब सेकंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम टाइगर्स आर कैट्स, कुछ जो टाइगर हैं वो क्या है, कैट है। तो अगर हम इन चारों पॉसिबल डायग्राम को चेक करते हैं तो हर एक पॉसिबल डायग्राम के अंदर जो टाइगर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या है, कैट है ही है। यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो क्या हो गया, सारे के सारे कैट क्या है, टाइगर है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ जो टाइगर है वो क्या हो गए, कैट हो गए। यहाँ पे अगर इस पॉसिबल डायग्राम पे जो चेक करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जितने भी जो कैट है वो क्या है, टाइगर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सम जो टाइगर है वो क्या हो गए, कैट हो गए। और अगर हम इस पॉसिबल डायग्राम में चेक करते हैं तो भी, और अगर इस पॉसिबल डायग्राम में चेक करते हैं तो यहाँ पे भी, यानी कि इन चारों पॉसिबल डायग्राम के अंदर क्या हो गए, कुछ जो टाइगर है वो क्या है, कैट है। तो सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो गया, फॉलो हो गया। अगर मान लो कि अगर ये दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास ये 5 तरह के ऑप्शन हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, और ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इन 5 ऑप्शंस में से हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दीज कंक्लूजन, दीज बोथ द कंक्लूजन आर फॉलोइंग, इट मींस विच वन ऑप्शन वी विल चूज द थर्ड ऑप्शन, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो अब ये तो था आपका फर्स्ट तरीका, यानी कि फर्स्ट वे, बाय ड्राइंग ऑल पॉसिबल वेन डायग्राम से। लेकिन मैंने आपको बताया कि पॉसिबल वेन डायग्राम, सारे के सारे जो पॉसिबल वेन डायग्राम्स हैं ये बनाने हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टाइम से दिस इज नॉट नेसेसरी दैट वी कैन ड्रॉ ऑल द पॉसिबल डायग्राम्स। और अगर हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो फॉलो करेगा और जो नॉट फॉलो करेगा उसके लिए हमें पता नहीं चल पाएगा।
तो इसी को जो ये फर्स्ट आपका प्रोसेस है, फर्स्ट जो वे है बाय ड्राइंग ऑल द पॉसिबल वेन डायग्राम है, इसको थोड़ा सा और भी क्या किया जाता है, इजी किया जाता है। इजी कैसे किया जाएगा कि जब हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम में हम इस एक अकेले को चेक कर रहे हैं, एक अकेले कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है, कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम तो नहीं है जिसके अंदर ये कंक्लूजन क्या ना हो रहा हो, फॉलो ना हो रहा हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम चेक तो सब में कर रहे हैं, लेकिन हम क्या चेक कर रहे हैं, नेगेटिविटी चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर वो क्या नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। इजी कैसे बनाएंगे कि हम सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम्स में ये चेक करने की बजाय कि क्या ये सब में फॉलो हो रहा है, हम एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम चेक कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर ये क्या नहीं हो रहा हो, फॉलो नहीं हो रहा हो। तो अगर हम कोई भी एक ऐसा मान लें जिसके अंदर ये फॉलो नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई भी एक पॉसिबल डायग्राम हमें मिल जाता है पहले ही कि भाई जिसके अंदर वो क्या नहीं हो रहा हो, फॉलो नहीं हो रहा हो, तो हम यहाँ से अपना सारा का सारा टाइम बचा सकते हैं और हमें डायरेक्टली उस चीज को क्या कर देंगे, नोट फॉलो कर देंगे कि भाई ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन इसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमने इसमें क्या किया है, सारे के सामने वो चेक किए हैं जिसके अंदर वो क्या नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा। बाय चांस अगर हम ये जो सेकंड कंक्लूजन है, इस सेकंड कंक्लूजन की बजाय कोई और एक सेकंड कंक्लूजन लेते हैं, दिस इज द सेकंड कंक्लूजन, और यहाँ जो सेकंड कंक्लूजन है उसके अंदर हम लिखते हैं कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट। ये हमारे लिए सेकंड कंक्लूजन है, और जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट। इससे पहले वाला जो कंक्लूजन था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सम टाइगर्स आर कैट, तो इसके अंदर से हमने क्या किया था, फाइंड आउट कर लिया था कि भी किस किस के अंदर ये फॉलो हो रहा है। सब में अगर फॉलो हो रहा है तो ये क्या हो गया, फॉलो हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें अपना टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, हम केवल एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम ढूंढेंगे जिसके अंदर आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं होता हो। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल डायग्राम से अगर मैं इनको सबको ड्रॉ नहीं करता हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूंगा कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट। इसका मतलब है कि क्या कोई ऐसा पॉसिबल वेन डायग्राम है जिसके अंदर क्या हो, ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होता हो। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इस पॉसिबल डायग्राम के अंदर मैं चेक करता हूँ कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट, तो यहाँ पे अगर मैं ये चेक करूँ कि भाई सारे के सारे जितने भी कुछ टाइगर्स क्या है, कैट नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, ये फॉलो हो रही है या फॉलो नहीं हो रही है। इन दोनों में से आपको ये चीज चेक करनी है कि भाई क्या यहाँ पे कुछ ऐसे टाइगर हैं जो क्या नहीं हो, कैट नहीं हो। यहाँ पे क्या हो गया कि भाई इसका मीनिंग ये हो गया कि कुछ टाइगर कम से कम ऐसे हैं ही हैं कि जो क्या नहीं है, कैट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी कैट हैं वो सारे के सारे टाइगर हैं, और जितने भी टाइगर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कैट हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, फॉलो हो रही है या नॉट फॉलो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट, कि कुछ टाइगर हैं ऐसे जो कि क्या नहीं है, कैट नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं उसी चीज को चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज रॉन्ग प्रूव हो रही है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइगर नहीं है जो कि क्या ना हो, कैट ना हो। यहाँ पे सारे के सारे जो टाइगर है वो क्या है, कैट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये हमारे लिए क्या नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे ये कंक्लूजन फॉलो अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ने तो क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, और सेकंड ने क्या किया है, नॉट फॉलो किया है। अब बात करते हैं नॉट फॉलो की। जो नॉट फॉलो है वो नॉट फॉलो होते हैं दो तरह के। कैसे कि एक नॉट फॉलो होता है जो कि क्या होगा, अगर हम नॉट फॉलो की बात करते हैं तो ये जो नॉट फॉलो है, ये नॉट फॉलो है दो टाइप के। एक जो प्योरली फॉलो नॉट फॉलो होगा, प्योरली नॉट फॉलो इसका मतलब कि भी वो यस ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, श्योर है हमें। और जो दूसरा नॉट फॉलो है वो दूसरा नॉट फॉलो होगा डाउटफुल नॉट फॉलो। डाउटफुल नॉट फॉलो इसका मतलब है कि हो सकता है कि क्या होंगे, वो फॉलो ना करे, मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी, श्योर नहीं है कि भी फॉलो होगा ही नहीं,
ये क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि भी हो सकता है कि वो चीज क्या ना हो, फॉलो ना करे। तो जब ये चीज होगी कि भी वो डाउट रह जाता है। अब जो क्वेश्चन जो कंक्लूजन हमने यहाँ पे चेक किया है कि भी सम टाइगर्स आर नॉट ए कैट है, तो जो सम टाइगर्स आर नॉट कैट है, वो जो सम टाइगर्स आर नॉट कैट है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डाउटफुल नॉट फॉलो हो जाता है। डाउटफुल नॉट फॉलो कैसे हो गया कि ऐसे पॉसिबल डायग्राम्स है जिसके अंदर हर एक के अंदर वो फॉलो ना करे, दैट इज श्योरली नॉट फॉलो। लेकिन ऐसे पॉसिबल डायग्राम है जिसके अंदर कुछ के अंदर वो नॉट फॉलो हो और कुछ के अंदर वो क्या करता हो, फॉलो करता हो, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, डाउटफुल नॉट फॉलो हो जाता है। इस डायग्राम के अंदर दिस इज द पॉसिबल डायग्राम एंड इन दिस पॉसिबल डायग्राम है दिस कंक्लूजन है इज नॉट फॉलोइंग, बट इन दिस द फर्स्ट डायग्राम है, इन दिस डायग्राम है सम टाइगर्स आर नॉट कैट, इन दिस दैट इज फॉलोइंग। इसका मतलब एक पॉसिबल डायग्राम के अंदर वो क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, और जो दूसरा पॉसिबल डायग्राम है उसके अंदर ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो तरह के नॉट फॉलो हो गए। एक वो जो कि श्योरली बता दे आपको कि यस फॉलो नहीं कर रहा है, और एक ऐसा कि जो आपको किस में कर दे, कंफ्यूजन में रख दे कि भाई फॉलो हो भी सकता है और फॉलो नहीं भी हो सकता। तो वो क्या हो गया आपका, डाउटफुल नॉट फॉलो हो गया। तो अगर हम केवल इन दो ऊपर वाले कंक्लूजन को लेते हैं तो जिसके अंदर क्या हो गया, फर्स्ट वाला ऐसा हो गया ऑल डॉग्स आर टाइगर, हम एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम ढूंढेंगे जिसके अंदर ये क्या ना करता हो, फॉलो ना करता हो। तो ऐसा कोई भी पॉसिबल डायग्राम हमारे पास नहीं है जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट कर सकें कि ऑल डॉग्स आर टाइगर फॉलो ना करे। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, फॉलो कर गया। और तो ये सेकंड था कि सम टाइगर्स आर कैट है, एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम हम फाइंड आउट करें कि भी जिसके अंदर क्या करे, सम टाइगर्स आर जो कैट है वो फॉलो ना करे, यानी कि वो चीज क्या हो जाए, गलत प्रूव हो जाए। तो ऐसा कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं है जिसके अंदर हम ये चीज फाइंड आउट कर सके, जिसका मतलब क्या होगा, सेकंड भी फॉलो हो गया। लेकिन अगर मैं इसी सेकंड को रिप्लेस करता हूं नीचे वाले कंक्लूजन के साथ है सम टाइगर्स आर नॉट कैट, तो सम टाइगर्स आर नॉट कैट के अंदर हमें केवल क्या करना है, एक ऐसे पॉसिबल डायग्राम को फाइंड आउट करना है जिसके अंदर ये क्या ना करता हो, फॉलो ना करता हो। तो ये वो पॉसिबल डायग्राम है जिसके अंदर ये क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। और अगर ये फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, आपका नॉट फॉलोइंग हो गया। तो फर्स्ट वाले के साथ आपका ऑप्शन हो जाता है थर्ड, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। लेकिन अगर मैं इससे नीचे वाला लेता हूं तो उसके अंदर क्या होगा, केवल जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है केवल वो आपका फॉलो कर रहा है, जो ये नीचे वाला जो कंक्लूजन है ये आपका क्या नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें केवल इस ऑप्शन को चूज करेंगे जो कि सबसे ऊपर है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन है फॉलोज है। तो ये कंक्लूजन है जिसका आपको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताया गया है, तो आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं आपका सेकंड वे, दैट इज द सेकंड वे बाय ड्राइंग ओनली वन वेन डायग्राम। इसका मतलब क्या होगा कि अभी तक हम केवल सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हमें अब सिर्फ एक ही डायग्राम को, एक ही जो डायग्राम है वेन डायग्राम वो ड्रॉ करेंगे और उसी के बिहाफ के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब यहाँ पे हम अगर सारे पॉसिबल वेन डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम केवल एक ही पॉसिबल डायग्राम बना रहे हैं, एक ही डायग्राम है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ से हम डायग्राम जस्ट केवल स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड सबसे फास्ट अगर किसी चीज को रीड करता है तो वो रीड करता है इमेजेस को। अगर आपको बता दिया जाए कि ये एक एप्पल है, इमेजिन करवाया जाए कि दैट इज द एप्पल है, कि एक गेंद के आकार के जैसा थोड़ा सा गोल गोल एक फ्रूट होता है जिसका कलर रेड भी होता है, जिसका कलर थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी होता है। ये सारी चीजें बताने में कितनी ज्यादा चीजें हमें बतानी पड़ रही हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को डायरेक्ट एक एप्पल दिखा दें कि दैट इज द एप्पल, तो कितनी सिर्फ एक ही चीज में बता दें कि दिस इज द एप्पल, अब वो क्या हो गया, उसको वो चीज जल्दी याद होगी, वो चीज उसको कितनी क्या होगी, जल्दी समझ में। क्यों? क्योंकि वो उस चीज की इमेज देख रहा है, और इमेज ही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान का, ह्यूमन बीइंग का माइंड सबसे फास्ट रीड कर पाता है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल इस स्टेटमेंट को डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए पॉसिबल डायग्राम या इम्पॉसिबल डायग्राम नहीं है, हम जस्ट उस डायग्राम को क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हमें ये पता चले कि इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है।
इसका मीनिंग क्या हो गया? टोटली मीनिंग ये हो गया कि उस टाइम पे फिर मैं क्या नहीं चेक कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी स्टेटमेंट्स को चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे केवल और केवल क्या करूंगा? उस डायग्राम को चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम ही क्या है उसके लिए? वो डायग्राम ही उसका कन्वर्सेशन है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? केवल एक ही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वो जो डायग्राम है वो डायग्राम क्या है? जस्ट और जस्ट केवल आपकी स्टेटमेंट है। तो अभी इसके लिए मैं केवल एक ही जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, तो वो डायग्राम होगा, वो डायग्राम क्या होगा? लेट्स सी। ऑल कैट्स आर, ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है। किसके अंदर कन्वर्ट किया है? डायग्राम के अंदर। कि ऑल डॉग्स, ये वो सारे डॉग्स हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, वो सारे डॉग्स हैं जो कि क्या है? आपके कैट्स हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट है। अब अगर मैं इस डायग्राम को चेक करता हूं और ये मेरे से कोई पूछे कि क्या स्टेटमेंट दी हुई होगी, तो मैं यही कहूंगा ना कि यहाँ पे ये दिया हुआ होगा कि भाई ऑल द डॉग्स आर कैट्स। तो ये स्टेटमेंट मुझे क्लियर हो रही है, ना कि ऐसा कि हम केवल एक उसके लिए पॉसिबल डायग्राम बना रहे हैं या कुछ और। मैं जस्ट इस स्टेटमेंट को, जो ये आपकी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर टाइगर्स, ऑल कैट्स आर टाइगर। तो ये क्या हो गया आपके? टाइगर। अब दिस इज द स्टेटमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन को रीड करता हूँ, तो कंक्लूजन को रीड करने के बाद अगर मैं ये चेक करता हूँ कि भाई ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं क्या चेक करूँ? तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक डायग्राम को चेक करूंगा, जो कि हमने क्या किया है? स्टेटमेंट को डायरेक्टली इसके अंदर फिगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऑल डॉग्स आर टाइगर्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ है कि जो सारे डॉग्स हैं वो सारे के सारे डॉग्स क्या हैं? कैट्स हैं। और सारे के सारे जो कैट्स हैं वो क्या हैं? टाइगर हैं। तो सिंपल सी बात होगी कि अगर सारे डॉग कैट हैं और सारे के सारे जो कैट वो टाइगर हैं, तो सीधी सी बात है कि जो डॉग्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? टाइगर हो जाएंगे। तो एक ही डायग्राम से क्या हो गया? हमें पता चल गया कि जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सम टाइगर्स आर कैट है। कुछ जो टाइगर हैं वो कैट हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि यहाँ दिया हुआ है, दिस इज द स्टेटमेंट ओनली। हम किसी और चीज को नहीं देख रहे, हम केवल इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि भी ऑल डॉग्स आर क्या है? कैट्स हैं। और सारे के सारे जो कैट है वो क्या है? टाइगर। अगर सारे कैट टाइगर हैं तो सीधी सी बात है कि कुछ जो टाइगर होंगे वो क्या होंगे? कैट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका सेकंड कंक्लूजन है वो भी क्या हो गया? फॉलो हो गया। अब बात करते हैं, अगर मान लो कि ये कंक्लूजन ना दिया हुआ हो, अगर हमें मिल जाए, पता चल जाए कि भाई ये वाला कंक्लूजन हमें नहीं दिया हुआ, हमें कंक्लूजन दिया हुआ है नीचे वाला, यानी कि ये वाला कंक्लूजन दिया हुआ है। और नीचे वाला जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या हो गया? कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट। कुछ जो टाइगर हैं वो क्या नहीं है? कैट नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भी अगर हम केवल इसी एक डायग्राम को देखते हैं और इस एक डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट, और ये चीज क्या हो रही है? यहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर ये फॉलो यहाँ पे हो रही है तो उस टाइम पे, यानी कि जब हमने इससे पिछले वाला जब क्वेश्चन सोल्व किया था, उस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कर दिया था? इसको बोला था कि भाई ये जो सेकंड जो कंक्लूजन है, अगर हम इस वाले कंक्लूजन को चेक करते हैं तो ये वाला कंक्लूजन क्या नहीं हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप केवल इस डायग्राम को चेक करते हैं तो आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे तो ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। और अगर ये फॉलो हो रहा है तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि भाई ये गलत है, ये फॉलो नहीं हो रहा है? तो अब एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा था कि ये इसका एक पॉसिबल डायग्राम नहीं है। दैट इज नॉट द पॉसिबल डायग्राम फॉर द स्टेटमेंट फॉर मी। दैट इज द कन्वर्सेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि मैंने इस स्टेटमेंट को एक फिगर का रूप दे दिया है। तो ये मेरे लिए क्या हो गई है? दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट है, जो कि मैं अब केवल इसके अंदर क्या कर रहा हूँ? इस फिगर के अंदर मैं इस चीज को रीड कर रहा हूँ। तो अब ये चीज है कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट, अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो गई है? दिस इज द स्टेटमेंट फॉर मी। ये मेरे लिए एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि भी सारे डॉग क्या हैं? कैट हैं। और सारी की सारी जो कैट हैं वो क्या हैं? टाइगर। तो पहले ही माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं किसी से भी ये बोलूं कि भी सारी
ऑल द कैट्स आर टाइगर, सारे की सारी जो कैट हैं वो टाइगर हैं। तो क्लास में क्या होगा, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये चीज नहीं आएगी कि भाई अगर सारी कैट टाइगर हैं तो क्या सारे टाइगर भी कैट हैं, ये माइंड में नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चों के क्या आएगा, ये चीज माइंड में आ जाएगी। और अगर कुछ बच्चों के ये चीज माइंड में आएगी तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि भाई ये तो बोल दिया कि भाई सारे की सारी जो कैट है वो क्या है, टाइगर हैं, पर क्या सारे टाइगर भी कैट हैं। तो उसके माइंड में क्या आ गया, एक क्वेश्चन बन गया। वो पूछ सकता है कि सर सारे कैट हैं वो तो क्या है, टाइगर हैं, तो क्या सारे टाइगर भी कैट हैं। तो उस टाइम पे केवल एक ही रिप्लाई होगा, वो रिप्लाई क्या होगा कि भाई हमें सिर्फ ये पता है कि भाई सारी कैट टाइगर हैं। अब हमें नहीं पता, दैट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइगर्स आर ऑल्सो कैट, कि भाई सारी की सारी जो टाइगर हैं वो भी कैट हो। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे हमारे लिए एक शंका बन गई है, कंफ्यूजन आ गया। कंफ्यूजन क्या आ गया कि भी ये चीज तो क्लियर ही नहीं हुई। क्या चीज क्लियर नहीं हुई कि भी सारे के सारे जो टाइगर हैं वो भी कैट हैं। ये हमारे लिए क्या हो गई है कि कंफ्यूजन बन गई। और अगर कोई चीज हमारे लिए कंफ्यूजन बन जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज द डाउट फॉर अस। और अगर वो डाउट है हमारे लिए तो कोई भी डाउटफुल चीज क्या नहीं हो सकती, कंक्लूजन नहीं हो सकती, रिजल्ट नहीं हो सकता, निष्कर्ष नहीं हो सकता। अगर कोई चीज डाउट में है तो वो हमारे लिए कभी भी रिजल्ट नहीं बनेगा। और ये हमारे लिए क्या है, कंक्लूजन है। और अगर हमारे लिए ये कंक्लूजन है, डाउट बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये बन गया डाउट यहाँ से कि भी क्या सारे टाइगर भी कैट है। अब हमें नहीं पता कि सारे के सारे टाइगर भी कैट है, हमें सिर्फ इतना पता है कि सारे जो कैट हैं दैट आर टाइगर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइगर्स आर ऑल्सो कैट। तो जिस चीज का हमें नहीं पता वो हमारे लिए क्या हो गई, डाउट हो गई। और वही चीज हमें क्या कर ली गई, क्वेश्चन में पूछ ली, कंक्लूजन में पूछ ली कि सम टाइगर्स आर नॉट कैट, कुछ जो टाइगर्स हैं वो कैट नहीं है। ये श्योरली बोल रहा है, हक से बोल रहा है कि कुछ जो टाइगर है वो क्या नहीं है, कैट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ये कंफ्यूजन है, एक डाउट है कि we don't know about the tigers, that all the tigers are cat or not। तो अगर ये हमारे लिए डाउट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अब रिजल्ट, ये रिजल्ट कंफ्यूजन कैसे नहीं हो सकता, डाउट में कैसे नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम ऑफ 10th क्लास, 10वीं क्लास के एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और वहां पे आपके एग्जाम हो गए कंप्लीट है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपकी 10th क्लास क्लियर हो गई, तो सिर्फ आप एक बिहाफ पे बोल सकते हैं कि मेरे जो एग्जाम हैं वो बहुत अच्छे गए हैं। और अगर सारे के सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं तो हम ये थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं कि भाई हाँ मेरी जो 10th क्लास है वो क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डाउट में है। क्यों है डाउट के अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कंक्लूजन, जब रिजल्ट बन चुका होगा तभी हम ये श्योर होंगे कि यस आई हैव क्लियर्ड 10th क्लास। लेकिन उससे पहले तक क्या हो जाएगा, 10th क्लास आपकी क्लियर नहीं हुई है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक कंक्लूजन नहीं बना है, जब तक क्लियर नहीं हुआ है, तब तक वो क्या नहीं हो सकता, रिजल्ट नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता है कि कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो केवल एक ही डायग्राम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अब पॉसिबल डायग्राम और केवल एक ही डायग्राम में डिफरेंस क्या है। पॉसिबल डायग्राम के अंदर हमें दो प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं तो पॉसिबल डायग्राम बनाने हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई एक तो पहली चीज हम सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम बना नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम हो जो हमें नहीं पता हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि भाई सारे के सारे अगर मैं पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे बनाने बैठ जाता हूँ तो मेरे लिए उसको कितना टाइम लगा पॉसिबल। अब ये केवल दो स्टेटमेंट थे, इन दो स्टेटमेंट के लिए जो पॉसिबल डायग्राम बने हैं वो कितने पॉसिबल डायग्राम बन गए, 4 पॉसिबल डायग्राम बन गए। हो सकता है कि 4 से ज्यादा भी पॉसिबल डायग्राम बन जाए। तो क्या हो गया, मैं केवल और केवल पॉसिबल डायग्राम बनाते ही रहूंगा और जो सारा का सारा टाइम है वो किसमें निकल जाएगा, पॉसिबल डायग्राम बनाने में। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है आपका, सेकंड जो प्रोसेस है कि भाई हम केवल क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एक डायरेक्शन दे देंगे, फिगर की डायरेक्शन दे देंगे कि हम इस कंप्लीट स्टेटमेंट को एक फिगर में कन्वर्ट कर दिया। तो फिगर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें कंक्लूजन को सोल्व करेंगे और फिर उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब
बात करते हैं कि दीज वर द कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगर ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये ब्रीफ आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अंदर क्वेश्चन कितने टाइप से आएंगे। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अंदर जो क्वेश्चन आपके मिलेंगे वो क्वेश्चन आपके 3 टाइप से मेनली रहते हैं। 3 टाइप से कैसे, पहला जो टाइप आएगा वो टाइप क्या होगा, जिसके अंदर क्या होंगे आपकी केवल 2 स्टेटमेंट होंगी, 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन। सेकंड जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो क्वेश्चन क्या होंगे, 3 स्टेटमेंट एंड 2 और मोर कंक्लूजन। थर्ड जो आपके टाइप रहेगा वो क्या रहेगा आपका 4 स्टेटमेंट और मोर, 4 और मोर। एंड 2 और मोर कंक्लूजन। तो ये आपके टाइप रहेंगे। यहाँ पे हम ये मान भी सकते हैं कि भाई 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन के लिए हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, और अगर 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन रहते हैं तो ऑलवेज आपके ये 5 ऑप्शन रहेंगे, जिसके अंदर से आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। किसी भी एक ऑप्शन को चूज करेंगे कि भाई या तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा या सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, या तो दोनों फॉलो करेगा या फिर केवल एक फॉलो करेगा, या फिर कोई भी कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। अगर आपकी स्टेटमेंट, अगर आपकी सेकंड टाइप 3 स्टेटमेंट रहती हैं और अगर केवल 2 ही कंक्लूजन रहते हैं, 3 स्टेटमेंट और केवल 2 कंक्लूजन है, तो आपके क्या रहेंगे, सेम ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर आपके कंक्लूजन है 2 से ज्यादा हो जाते हैं, तो 2 से ज्यादा होने के बाद आपके जो ये कंक्लूजन है, ये यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से भी ज्यादा ऑप्शन आपके पॉसिबल हो सकते हैं, और उस टाइम पे फिर क्या हो जाएंगे, आपके जो ऑप्शन रहेंगे वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप रहेगी वो रहेगी हमारी स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 2 और मोर कंक्लूजन, 4 और मोर स्टेटमेंट्स एंड 2 और मोर कंक्लूजन।